Hello, dear listeners. Hope you all are well. So, dear listener, we are discussing chapter 3. This is our food. In this chapter, we are reading about the different food we can have in different place of India. And there are some dishes that are cooked only in special occasion like festival, marriage, birthday of the child. And the food habits of a people depend on two factors, that is climate and the crop grown in the area. For example, in the desert area we can have only dal, pickles, beans. In the seacoast area we can have fish and coconuts. In the Kashmir, the cold region, we can have kahwa. It's a tea. And the people who grow wheat, so their staple diet is chapati. In the south region, the people grow rice, so their staple diet is rice. Yesterday we have discussed the food habit and taste of people are changing just because they are moving one state to another for living, business and education. And they also move to the another country and they enjoy the dishes of the place where they live as well as their own traditional dishes. After that, we have discussed from where we get the food. We got to know about that we get the food from plants and animals. Like wheat, rice, pulses we get from the plants, and spices, and some vegetables are cooked and some are eaten raw. And there are some fruits we eat when they ripe. And there are some dry foods like almond, walnut, pista are first dried and then eaten. And spices are important part of Indian cooking, and India is the largest producer of spices in the world. After that, we have read in the present time many people are giving up non-vegetarian food because vegetarian food is healthier and easy to digest as compared to non-vegetarian food. अगर हम आज की बात करें तो बहुत से जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ रहे हैं और वेजिटेरियन फूड को यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो इजी रहता है डाइजेशन के लिए. Now we will continue our chapter from here. We get milk, egg, mutton, chicken and fish from animals. So animal give us milk, egg, mutton, chicken and fish. Different spices are followed in different state of India for preparing non-vegetarian dishes. अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन डिशेस को बनाने के लिए डिफरेंट जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो यूज़ किए जाते हैं इस खाने को बनाने के लिए. नॉन वेजिटेरियन फूड या डिशेस को बनाने के लिए हम अलग तरह के मसालों को यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पर. In some part of the world, cockroaches, snakes, snail and even eggs are eaten. कई जगहें वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जहाँ पर कॉकरोच को भी खाया जाता है, स्नेक्स को भी खाया जाता है, स्नेल्स को खाते हैं और जो एंट यानी कि जो चींटी है उसके एग्स को भी खाया जाता है. सो कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर इस तरह के खाने को पसंद किया जाता है. बट इन इंडिया वी ईट वेजिटेरियन फूड. मोस्ट ऑफ द पीपल ईट वेजिटेरियन फूड्स. सो what we have discussed here कि animal give us
milk, egg, mutton, and plant give us different type of food like wheat, rice, fruits, spices, etc. Now there is a story. Do not waste food. Raju went to a birthday party. He picked up a plate and filled it up. राजू एक बच्चा है, वो किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा है और उसने क्या किया है, प्लेट ली और उसको पूरा का पूरा भर दिया खाने के सामान से. He ate only a small portion and put his plate down. और उसने क्या किया, पूरी प्लेट तो भर दी बट उसके बाद थोड़ा सा ही उसने उसमें से खाया और बाकी का सारी की सारी प्लेट नीचे रख दी, मतलब उसने उसको नहीं खाया. सुरेश डिड नॉट लाइक इट. और जो सुरेश है वहीं पर एक बच्चा जो बर्थडे पार्टी में आया, उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. ही सेड, व्हाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड. तो सुरेश ने उससे बोला कि तुमने इतना सारा फूड वेस्ट क्यों किया, जब तुम्हें इतना खाना ही नहीं था तो तुमने इतना सारा अपनी प्लेट में डाला क्यों. यू शुड टेक ओनली अ स्मॉल पोर्शन एंड देन टेक सम मोर इफ़ यू वांट. उसने उसको बोला कि जब तुम्हें पहले थोड़ा सा ही खाने का सामान लेना चाहिए था और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें और खाना है तो तुम और भी ले सकते थे खाने के लिए. ये नहीं कि पहले प्लेट भर दी और थोड़ा सा खाया और रख दिया. तो पहले तुम्हें थोड़ा सा सामान खाने का लेना चाहिए था, प्लेट में डालना चाहिए था. उसके बाद अगर और तुम्हें इच्छा होती खाने की तो तुम और भी ले सकते थे. राजू फेल्ट सॉरी एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू वेस्ट फूड. और राजू को ये जब उसको लगा हाँ ये तो मुझसे गलती हो गई है, उसने सॉरी बोला और उसने कहा मैं दोबारा ऐसे फूड को वेस्ट नहीं करूँगा. कि थोड़ा सा लिया और बाकी सारा का सारा काफ़ी सारा भर लिया उसके अंदर प्लेट में, थोड़ा सा खाया और बाकी फेंक दिया. सम पीपल वेस्ट फूड. दे आर इधर ग्रीडी एंड थॉटलेस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने को वेस्ट करते हैं. या तो वो लोग ग्रीडी होते हैं या थॉटलेस मीन्स वो सोचते नहीं हैं कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. बस मन किया फटाफट प्लेट भर दी बिना सोचे हुए और खा जाता नहीं है, फिर उस प्लेट को नीचे रख देते हैं. मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफिन्स दैट दे ब्रिंग टू स्कूल. और ऐसा भी होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टिफ़िन तो लेके आते हैं पर वो खाते नहीं हैं उसको पूरा और उस टिफ़िन को फेंक देते हैं. होते हैं ना ऐसे बच्चे. दे शुड नॉट वेस्ट फूड. और ऐसे बच्चों को कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. बच्चों को क्या, हम सभी को जो है फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. उतना ही फूड लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं. देयर are many people in our country who are very poor and cannot buy food. और हमारी कंट्री में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, पुअर पीपल हैं जो कि खाना नहीं खरीद सकते. तो हमें ये बात सोचनी चाहिए फूड वेस्ट करने से पहले कि हम लकी हमें खाना मिल रहा है पर हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे ही सो जाते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, ना ही वो खाना खरीद सकते हैं. ये सिचुएशन हम आजकल देख रहे हैं कैसे कोरोना डिजीज़ के कारण बहुत से लोग को खाना नहीं मिल रहा है, बट कुछ लोग जो है उनकी हेल्प कर रहे हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, उन्हें ज़्यादातर खाना दे रहे हैं. अगर हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे तो उनको वो खाना आसानी से मिल जाएगा. मोर ओवर नेचर गिव अस फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट. सबसे बड़ी बात है कि जो नेचर है जहाँ से हमें खाना मिलता है उसने हमें खाना जो है खाने के लिए दिया है, ना कि वेस्ट करने के लिए. वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें
रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और हमें जो है खाने को, वाटर को और इलेक्ट्रिसिटी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे कैसे वेस्ट करते हैं वाटर, जब वो वॉशरूम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, टैप को खुला छोड़ कर आ जाते हैं। तो जब भी आप वॉशरूम जाएं प्लीज़ आप उस टैप को बंद करें, चेक करें कि वो हुआ कि नहीं। हमें वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी होती है, जिस रूम में आप बैठे हो और आप वहाँ से उठ के जा रहे हो दूसरे रूम में, तो प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स। वी शुड नेवर वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दियर एंड हैप्पी। और हमें जो है बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो हमें स्ट्रेंथ दे हमें, हमारी बॉडी को। ऐसे नहीं कि कुछ भी खाते जाइए आप, कुरकुरे, चिप्स ये खाएं आप, तो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस रखती है, ठीक है, और हमें स्ट्रेंथ देती है। द 5 प्रिंसिपल ऑफ फूड। देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑफ फूड। नंबर 1, बाय ओनली व्हाट यू नीड। सिर्फ वही चीज़ खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत हो। अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। कुक इट विद लव। जब भी खाना बनाते हैं तो प्लीज़ उसे प्यार के साथ बनाना है, लव के साथ बनाना है। सर्व इट ब्यूटीफुली। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप सर्विस या प्लेट में खाना डाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसे बहुत ही सुंदर तरीके से देना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे और फिर वो खाने का मन भी करता है। ईट ए बैलेंस डाइट। और हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, यानी प्लेट भर भर के खा लिए बहुत सारा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी को पावर दे सके। टेक ओनली एज मच एज यू नीड। उतना ही लें जितना कि आपको खाना होता है, ठीक है। नेवर नेवर वेस्ट फूड। हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब बैलेंस डाइट लेंगे, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मिल्क लेंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर, आवर फूड. So what will you do? You will read this chapter. That's all for the day. Have a nice day.